Python file. Okay, first of all, we'll create a Python file. So right click, new, and then Python file. Now to create a class, okay, I'll just give a, specific class name. I'll say it's my class, okay, my class. I'm giving this as a name of class, okay, my class.py. So I'll say class, okay, class is a keyword, okay. In case of Python, class tells that whatever I'm mentioning against it will be the class name. So I'll say class, okay, class name, okay, this way. This is how I will be giving my class name. So this is my class, okay, this becomes my class, and inside that class, if I say I'll say a comma b equals 10 comma 20. Okay, that means a is having value of 10 and b is having value of 20. Okay, now if I need this is these are variables. Okay, these are variables. Okay, and these are called as class variables. Okay, one more thing, this is called as class variables. I'll explain about this as well. Okay, one by one. So this is class variables. Now I'll create a method. So how to create a method? Okay, how to create a method? So simply you just have to write or say def, okay, or define, okay, short form def, okay, def, and then you have to give the name of your method, or you can say function. See, in case of this Python, we have two things. One is function and method. The basic difference between function and method is if inside a class you are defining a function, okay, that is called as a method. It can be separately also written without a class. That would be called as a function. So both the things means the same only. But if it is inside a class, then we will call it as a method. Okay. So I'll say my underscore function. This is my function. Okay. Let me change this to my class. Okay. Instead of class name, I'll say my class. Okay. My underscore class. Okay. Something like this. So it will be more easier to understand. Now, whenever I create a method, okay, it will be having this keyword that is called as self. So this is very much similar to Java this keyword. Okay, Java में एक keyword होता है this. तो Python में जो self है that is very much exactly similar. Function same है. तो self क्या करता है? Self जो है it tells okay कि this method belongs to this class. Okay, and it is an instance. Okay, instance. ये self के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो. Okay, by default Python इसे self ही करके लिख के आएगा. ये object kind of an instance है, kind of object ही है, right? But then ये by default आएगा ही आएगा. और इसके बदले आप कुछ दूसरा नाम भी लिख सकते हो. Okay, चलो. अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ print statement, एक simple सा print statement, and I'll say my function. Okay, something my function. That's it. So what I have done, I have created a class. I have given the name of the class as my class. I have declared two variables. Okay, they are called as class variables, and I have defined a function. Okay, and what I am doing in that function, I am printing a statement. I am printing a statement, my function. Okay, this is called as instance method. Okay, this is called as instance method. Why instance? Instance means object. Okay, instance means object. Method. Okay, दो तरह के methods होते हैं in Python. One is instance method and another one is static method. तो यहाँ पे this is instance method. So when we call it as instance method, that means we have to call this method. Okay, I have written over here. Actually, it should come over here. Okay, this is an instance method. So if you want to call a method,
we have to call with the help of object of the class. Now what is object? I have just written down some lines related to that. So class is nothing but a logical entity which contains a logic. We write some logic, okay, we write some program. The class contains variables and methods. We have already seen, okay, we have just created variables and methods. Logic should be included within a method. So method will contain the logic, okay, not the variables. Variables will contain data, right? Like if I say I'll be having this as, okay, I'll say age equals 24. So this is a data which I'm storing in a variable, but the logic will be coming inside my method. And a class contains both the things, variables as well as methods. Okay. Now an object is a physical entity which is created for a class. So say for example, your class is a furniture. Okay, your class is furniture. So what will be your object? Your object will be chair. Chair will be your object. Okay, your object will be table. Okay, these are objects which are of type furniture. So this is a logical entity. This is the physical entity which you can see or touch. Okay, as in physical world. Okay, but over here we'll just give a name. Okay, we cannot touch actually. We can just see and observe it. We can understand that way. Okay, so it's a physical entity which is created for a class. Okay, we can create any number of objects for a class. You can have any number of objects. I've just given a difference between class and object. Okay, similar to this, you can have a class, say for example student. Student is a class. Okay, so what would be the object? So object would be Ravi is a student. Okay, then you will be having Ramesh. Okay, so Ramesh is a student, something like this. So these are nothing but objects of this particular class. So this is the basic difference between class and object. So what I have created? I have created a class. Now if I want to create an object, I will say my object. Okay, I will just say my object. My object equals my underscore class. Okay, this is what I'm, okay, creating. I'm creating an object, and what it is storing? It is storing the object of my class. Now if I want to access this function, my function, I will be calling with the help of my object. Okay, so my object dot, okay, and you can see my function is available. Even age is available. Both belongs to my class. This is the name of class, and this is a variable, and this is the name of function. So if I want to call a function, I'll just click on it. Okay, and now let's run. Okay, execute it. So when we execute, okay, what Python will do? It will create an object of a class, and then with the help of object, it will call the method. Okay, so let's execute it. Run my class. You can see my function has been printed over here. Okay, so that's why this function is called as instance method, because we have called this method with the help of instance. So calling a method with the help of an instance. Okay, with the help of an instance. This is an instance. Okay, creation of an instance. Creation of an instance, or you can say object. Okay, object. Creation of an instance or object. Okay, clear guys? This part understood up to this portion? तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया. क्या समझ में? देखो, ये क्लास है. ओके, क्लास फिर क्लास का नाम. और पाइथन में जब भी हम इफ लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, राइट, तो हम कॉलम देते हैं. तो ये आपका क्लास हो गया. उसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इंडेंटेशन देखिए, आप एक एज वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो. एज हमने देख लिया पहले भी कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं. तो ये वेरिएबल है, राइट, दिस इज अ वेरिएबल. इसको क्लास वेरिएबल कहते हैं.
अब उस क्लास के अंदर ही एक हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन और फंक्शन। तो डिफाइन और फंक्शन का नाम और ब्रैकेट में सेल्फ। ये किसी भी पाइथन में आप बनाओगे तो वो सेल्फ लेगा ही लेगा एज ए व्हाट यू से फर्स्ट पैरामीटर। ओके, इट विल टेक दैट एज अ सेल्फ। आप आर्ग्यूमेंट भी अलग से पास कर सकते हो पैरामीटर्स, बट ये आपका पहला पोर्शन आता है। Okay, it tells Python that this function belongs to this class. Okay, sir. फिर कोलन देना है आपको, फिर आपको इंडेंटेशन देके प्रिंट माय फंक्शन। दैट मीन्स कि ये जो लॉजिक है, ये जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, इट बिलोंग्स टू दिस फंक्शन। बेसिकली फंक्शन को एक लॉजिक परफॉर्म करेगा, एक कोड परफॉर्म करेगा। हम फंक्शन क्यों बनाते हैं? हम फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि वो पर्टिकुलर लॉजिक मुझे n नंबर ऑफ टाइम्स रन करना है तो मैं रन कर सकता हूँ। Say for example, okay, say for example, I'll create another function also. I'll say my function, okay, my function name, okay, my function name ऐसे करके देते हैं और इसमें कॉमा नेम देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेम दे दिया। And then I will say print, okay, name is, and then comma name, okay, something like this. अब मैं इसे ओके माय ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूँ, ओके माय ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूँ ये वाला फंक्शन, ओके। और इसमें मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे रवि दे देता हूँ, रवि दे दिया मैंने, ओके। और फिर मैं दे देता हूँ, फिर से दोबारा मैं कॉल करता हूँ माय ऑब्जेक्ट से दूसरा फंक्शन, ओके। और उसमें दे दिया मैंने रमेश, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ये फंक्शन जो कॉल कर रहे हो उसमें आप रवि पास कर रहे हो, वो रवि कहाँ जाके स्टोर होगा? नेम में। और उसे हम नेम को प्रिंट करवा दे रहे हैं, नेम इज दिस, ओके। लेट मी रन दिस। सो सी नेम इज रवि, नेम इज रमेश। तो लॉजिक एक ही बार लिखा है आपने, लेकिन आप जब उस फंक्शन को कॉल करते हो, जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, ओके, वो आर्ग्यूमेंट यहाँ चाह रहा है और वो आप यूज कर रहे हो उस आर्ग्यूमेंट को और प्रिंट कर रहे हो एक स्टेटमेंट। तो ये एक आपने फंक्शन या मेथड बना दिया है जो एक पर्टिकुलर लॉजिक स्टोर करता है, और वो लॉजिक आप जब चाहे उसको यूज कर सकते हो। अब कल को उठ के मैं कुछ और नाम दूंगा तो वो नाम प्रिंट कर देगा। मेरा लॉजिक तो जेनरिक हो गया, है ना। अभी तो सिर्फ समझो इस फंक्शन में एक ही लाइन है, बट ऐसे 10 लाइन होती तो मैं 10 लाइन एक फंक्शन में लिख सकता हूँ। यस, हर्षित अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, yes. ठीक है। सो आपने जावा में भी देखा है, राइट? जावा में हम मेथड्स बनाते हैं, तो No. मेथड्स हम लोग क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि एक पर्टिकुलर लॉजिक है, जैसे मुझे एक्सेल शीट रीड करनी है तो उसका एक मेथड बनाऊंगा मैं, उसमें 10 या 15 लाइन का कोड होगा, तो मैं जब जो एक्सेल शीट रीड करना चाहता हूँ रीड कर सकता हूँ, राइट? तो लेकिन ये फंक्शन को हम क्यों कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाते हो? क्लास का नाम लिखो और उसका रेफरेंस आपका इसमें जाएगा, है ना। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes. चलो, now we can have a method, okay, with a default name also। जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? रवि पास कर रहे हो और रवि नेम में जा रहा है, प्रिंट कर रहे हो, ओके। अब मैं एक मेथड से define, okay, my function, okay, with default, okay, default name, okay, I'll say this way। देखो जैसे मैंने ब्रैकेट किया वो अपने आप सेल्फ आ जाता है, okay। And now I will say, uh, I'll say comma, okay. I'll give what should I say? Name, okay. Name लेते हैं हम लोग. Name is equal to let's say Ravi only, okay. Ravi, okay. This one. चलो, and यहाँ पे हम लोग इसी को copy paste करते हैं. इसी को copy paste करते हैं. This. ठीक है. अब say for example, okay.
मैं मेरे ऑब्जेक्ट से माय ऑब्जेक्ट से आई कॉल दिस अनदर फंक्शन, ओके, दिस वन डिफॉल्ट नेम वाले को कॉल करता हूँ। एंड इफ आई पास सम डिफरेंट वैल्यू, आई से स्वाति, ओके, स्वाति, then what it should print, it should print Swati, right? Name is Swati, right? इसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, okay? All these things I'll just comment, okay? So that we can remember. Some hash. I'll just comment them, okay? And this bookmark, okay, that's fine. Okay, now let's run this. So what it is printing, name is Swati. So even though I have given this name is equal to Ravi, बट यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ एज अ वेरिएबल। ये कौन सा, ये वेरिएबल क्या हो गया, ये लोकल वेरिएबल है, ओके। जो नेम है, ओके, यहाँ पे दिस एक्ट एज अ लोकल वेरिएबल बिकॉज उसका जो स्कोप है वो सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा, फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा। बाहर आप उसको एक्सेस करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जबकि ये जो वेरिएबल है ये इसको क्या कहते हैं, क्लास वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल। आप क्लास के नाम से उसको एक्सेस कर सकते हो। जबकि ये वेरिएबल हो गया लोकल वेरिएबल, ये पूरे क्लास में एक्सेस कर सकते हो। जबकि ये नेम आप सिर्फ इस मेथड में एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे करोगे तो आपको एरर देगा, राइट। मैं कॉमा देता हूँ नेम, ओके, इट विल गिव मी एन एरर। सी इट इज गिविंग मी एरर सेइंग दैट अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस नेम। नहीं पता चल रहा है पाइथन को कि व्हाट दिस नेम इज, राइट। That's the reason. So this is a local variable which I have created as part of parameter. तो जो भी आप पैरामीटर में देते हो फंक्शन के वो आपका लोकल वेरिएबल हो जाता है। जबकि आप मेथड से ऊपर देते हो क्लास लेवल पे, उसे हम क्लास वेरिएबल्स कहते हैं, जो पूरे क्लास में एक्सेसिबल रहेगा, ओके। बात पे चलो, अभी हम लोग इसको देख रहे थे। हमने तीन ऑप्शन देखे। एक तो मेथड है जो पैरामीटर नहीं ले रहा है, दूसरा मेथड जो पैरामीटर ले रहा है और हम उसे प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया और वैल्यू पास की और वैल्यू यहाँ पे आई और ये प्रिंट हो गई, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये कॉल क्या करेगा, मेथड को कॉल करेगा, असाइन हो जाएगा नेम में, असाइन हो जाएगा नेम में, असाइन हो जाएगा और यहाँ पे हम उसे प्रिंट भी कर दे रहे हैं। बट ये मेथड में हम डिफॉल्ट नेम लिख रहे हैं, मेथड का नाम, और नेम वेरिएबल को हम एक वैल्यू दे दे रहे हैं, दैट इज रवि, ओके। अब जब मैं यहाँ पे स्वाति पास करता हूँ तो वो स्वाति प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं माय ऑब्जेक्ट से, ओके, माय ऑब्जेक्ट से मैं सिर्फ ये कॉल करता हूँ डिफॉल्ट नेम को, बट कोई वैल्यू नहीं पास कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट पासिंग एनी वैल्यू ओवर हियर। इन दैट केस जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पे, जो डिफॉल्ट वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो दिस इज गोइंग टू प्रिंट, ओके, this is going to print default value of the parameter। जो भी मैंने पैरामीटर, इसको पैरामीटर कहते हैं, राइट। ये जो नेम दिया ये भी वेरिएबल है, उसे पैरामीटर कहते हैं। तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आपने रखी होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, अंडरस्टूड दिस पार्ट। या clear with this portion? Let me know any doubts or questions you have. No. So हमने दो चीजें की, एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया, एंड हमने तीन मेथड्स बनाए, एंड तीनों मेथड्स आपके इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड मतलब वी हैव टू कॉल दैट मेथड विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस ओनली। तो हमें इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। So this is the step for creation of your instance, and with the help of instance I'll say dot and then I will be calling the method, okay. These are three different ways you can call a method: without parameter, with parameter, okay, and with a default parameter value, default value.
ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसके अंदर हम लोग जैसे एक वैल्यू पास करें ना, जैसे हमने एक वैल्यू पास की, हमने अभी तक लिस्ट भी समझा है, लिस्ट सेट टपल भी समझा है, right? हम वो पूरा का पूरा लिस्ट भी मेथड में पास कर सकते हैं, ओके, वो पूरा मेथड में पास कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल गाइस। मैं ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आपको बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें आप अलग तरह से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मेथड्स बना सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिफाइन, ओके, माय फंक्शन, ओके, एंड आई से लिस्ट, ओके, लिस्ट करके हम लोग कर देते हैं। सो लिस्ट लिस्ट हम पास करेंगे, और लिस्ट में हम समझो फुड ले लेते हैं, ओके, फुड ले लेते हैं, ओके, जस्ट फुड ले लेते हैं। और अभी मुझे लिस्ट में इटरेट करना है, वन बाय वन इटरेट करना है। तो हमने फॉर लूप देखा था, फॉर एक्स इन फूड, ओके, एंड प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट फूड कर देंगे, फॉर सॉरी एक्स कर देंगे। तो जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ये क्या हो गया, आपका लिस्ट हो गया, राइट। अभी हम इसको लिस्ट को बनाते हैं पहले, फिर हम उसको मेथड में पास करेंगे, ओके। हर्षिल आप म्यूट हो जाओगे, बिकॉज मैंने कल देखा था रिकॉर्डिंग में आई वॉज गेटिंग लो वॉइस व्हेन यू आर अनम्यूटेड, सो प्लीज म्यूट म्यूट ही हूँ योरसेल्फ। सर। ये आप बोल रहे हो ना, म्यूट ही हूँ सर। ये आप मोबाइल से भी म्यूट हो जाओ, ऐसा बोल रहे मोबाइल से ही हूँ, एडिट कर रहा हूँ। हो। अच्छा, तो मुझे बैकग्राउंड एक नॉइज सुनाई दे रही है, क्योंकि कल मैंने रिकॉर्ड किया ना सेशन, तो आई वॉज गेटिंग माई वॉइस एज लो, मैंने काफ़ी बहुत स्लो वॉइस आ रही थी, तो इट वॉज हैविंग सम बैकग्राउंड नॉइज इन इट, सो दैट्स व्हाई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने एक मेथड बनाया जिसमें मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ, और इसमें अभी हम इसका नाम दे रहे हैं, पैरामीटर का नाम दे रहे हैं फूड, ओके। और मैं लिस्ट बना देता हूँ फ्रूट्स का, फ्रूट्स का लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट कैसे बनाते हैं, नाम देते हैं लिस्ट का, और फिर ब्रैकेट्स में हम लोग वैल्यूज पास करते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ एप्पल, ओके, कॉमा सिंगल कोट्स में बनाना, ओके, फिर सिंगल कोट्स में ऑरेंज, ओके, ये तीन फ्रूट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, अब ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, ओके, या फिर आई विल राइट डाउन, ओके, क्रिएशन ऑफ लिस्ट, ओके, लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। अब ये लिस्ट को मैं पास करूंगा मेरे फंक्शन में, तो आई विल बी पासिंग विद, मैं फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट डॉट, एंड दिस इज माय लिस्ट फंक्शन, तो इसमें मैं लिस्ट पास कर दूंगा, दैट इज फ्रूट्स, ओके, दैट। चलो अभी इसको हम लोग रन करते हैं, ओके, लेट्स रन दिस। सी, apple, banana, orange. Basically, you have passed a list inside a method. ये कौन से फंक्शन में गया, ये वाले फंक्शन में गया। तो फ्रूट्स एंटायर लिस्ट was stored in this food में, और फिर हमने जैसे लिस्ट को हम वन बाय वन रिट्राइव करते हैं ना वैल्यू, कल हमने लूप से पढ़ा था, राइट। तो फॉर एक्स इन फूड वी आर रिट्राइविंग द वैल्यू एंड प्रिंटिंग द वैल्यू। तो यहाँ पे हमने वो पोर्शन भी देख लिया, समझ जाएंगे। Clear with this part, understood up to this portion guys, समझ आया यहाँ तक, everyone understood this part। तो हमने तीन डिफरेंट मेथड्स देखे हैं, ओके, जिसमें हमने एक में हमने विदाउट पैरामीटर पास किया, ठीक है, एक में मेथड बनाया हमने जिसमें विदाउट पैरामीटर पास किया, पैरामीटर नहीं पास करे, जीरो पैरामीटर। एक में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, और उसको यहाँ से वैल्यू जब पास करते हैं तो वो वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं। फिर डिफ़ॉल्ट नेम, ओके, जो पैरामीटर है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, और अगर हम लोग कभी वैल्यूज़ नहीं पास करते तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा।
और फिर एक और ऑप्शन देखा जहाँ पे हम पूरा का पूरा लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो लिस्ट हम लोग मेथड में पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है और फिर हम लोग वन बाय वन उसको रिट्राइव करके उसे प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे जो मेथड्स मैंने आपको बना के बताया, ये कौन से मेथड्स हैं? इंस्टेंस मेथड। दे आर कॉल्ड एज इंस्टेंस मेथड। क्यों? बिकॉज इंस्टेंस के थ्रू हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस मेथड। अब इसमें एक और मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक मेथड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक मेथड। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्टैटिक मेथड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेथड, नॉर्मली मेथड होता है जैसे आप बनाते हो। ओके, सो आई विल से डिफाइन माय फंक्शन एंड आई विल से स्टैटिक। ओके, चलो ये हो गया स्टैटिक। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। ओके, दिस इज अ स्टैटिक मेथड। तो ये तो नॉर्मल हमारा फंक्शन है जो इंस्टेंस मेथड है। ये हमारा स्टैटिक कब होगा? जब हम इस पे एक ऐड करेंगे एनोटेशन जैसा, दैट इज स्टैटिक मेथड। ओके, so यहाँ पे आ गया। ओके, स्टैटिक मेथड। The moment we say this above any method, that method becomes static. Okay, that method becomes static. So this is a static method. Okay, static method. Okay, तो static method जो है वो हम कैसे एक्सेस करते हैं? With the help of class name. Okay, हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस with the help of class name। ओके, तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है हमारा? माई क्लास। ओके, तो आई विल कॉपी दिस एंड यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ लास्ट में। ओके, और डॉट करता हूँ। द मोमेंट आई से डॉट, ओके, आई एम गेटिंग दिस मेथड। आई, ओके, एंड देन इफ आई रन दिस, ओके, ओके, जस्ट अ मिनट, मिसिंग, ओके, पोजीशन सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे आपका सेल्फ नहीं आएगा। दिस इज अ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के केस में सेल्फ नहीं आएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। वो बाय डिफॉल्ट आप जैसे ही मेथड बनाओगे तो सेल्फ लिख के आ जाता है। आप जब एट द रेट स्टैटिक मेथड करोगे तो ये मेथड आप क्लास के नाम से एक्सेस करोगे। सी, क्लास के नाम से डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन केस अगर आपका मेथड स्टैटिक है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हो गए, स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड्स। एंड इंस्टेंस में भी आपके डिफरेंट वेरिएशन है। सेम चीज़ आप स्टैटिक में भी रख सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ स्टैटिक को एक्सेस करना है तो क्लास नेम से, और इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट से। सिर्फ इतना डिफरेंस है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक या फिर इंस्टेंस मेथड में। ठीक है, लेट मी जस्ट, तो ये सब रहेगा। ओके, एंड दिस इज योर क्लास वेरिएबल। ओके, क्लास वेरिएबल, तो इसे भी आप क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हो। ओके, क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हो, क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हो। दिस हैज टू सर बी, डिफरेंस मेंशन कर दो ना। क्या चीज, विच डिफरेंस? ये, हाँ ये डिफरेंस जो बोला आपने, ये यहाँ स्टैटिक वाला मेंशन कर दिया। ये लिख दिया ना, ऑब्जेक्ट वाला मेंशन कर दो ना एक बार। ये भी लिख देते हैं, एक्सेस्ड यूजिंग, ओके, एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ, ऑब्जेक्ट नेम। ओके, ऑब्जेक्ट नेम, राइट। तो ये आप इंस्टेंस में, क्योंकि उसको नाम बोलते हैं इंस्टेंस मेथड है, इसलिए इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस करें। ओके, और ये क्लास के थ्रू एक्सेस करें। Okay, I hope this is clear to everyone who has understood this part. Let me know, yes, no. Yes. So this is one portion, guys. Okay.
and let me create another class. And I will call it as person. Okay, say for example, person. And say class, also person. And then I will say def. Okay. Now we have this init method. Okay. This init method. इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ. What is init method? This is a kind of a default method. आप इसे बनाओ या ना बनाओ, ये कॉल होता ही होता है. This is actually kind of a constructor. अगर जावा किसी ने पढ़ा है, समझा है, तो जावा में जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी तरह ये बिहेव करता है. ओके, इंट नहीं आएगा, इनिट आएगा. सॉरी, इनिट आएगा. ओके, इनिट. सो इनिट आएगा. ठीक है, इनिट. ओके, इनिशियलाइजेशन की तरह इनिट आप बोल सकते हो, इनिशियलाइजेशन. तो ये क्या करता है, इनिशियलाइज किसको करता है? ये इनिशियलाइज करता है आपके वेरिएबल्स को. कौन से वेरिएबल्स को? क्लास वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल दे देते हैं जैसे यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा सेल्फ डॉट. ओके, सेल्फ डॉट नेम. ओके, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम and self dot age equals age. Now what I can do is I'll create an object. Okay, I'll say person1. Okay, person1 equals person. Okay, equals person and then brackets. This way. Okay, और उसमें मैं दो चीज़ें पास करता हूँ, एक नेम पास करना है और एक एज पास करना है. तो मैं नेम पास कर देता हूँ कि I'll say रवि and age is 16. Okay, this way. And we have to print also the values. Okay, so I'll say print. Okay, print p1 dot name. Okay, name print कर देते हैं. And I will say print. Okay, p1 is an object. Okay, and then dot age. Okay, चलो इसे अभी हम रन करते हैं. Sorry, this is different. So I'll say current file. So you can see Ravi and 16 has been printed. So what this method is doing, initialization method, what it's doing, it's taking two parameters, name and age. I'm passing name and age as part of this class. Okay, when I'm creating, see ये कब कॉल हो रहा है? जनरली हम लोग, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, तो हम लोग पहले क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर वो ऑब्जेक्ट से जब मेथड को कॉल कर रहे हैं तो मेथड में पैरामीटर पास करते हैं, है ना. पहले हमने क्लास में देखो कुछ भी मैंने पैरामीटर पास किया नहीं किया है. मैं सिर्फ क्लास के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और वो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड को कॉल कर रहा हूँ और वो मेथड में मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ जो यहाँ पे पैरामीटर ले रहा है. जबकि अगर आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो ये क्लास का नाम है और मैं उसमें ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ. ओके, उसी में पैरामीटर पास कर रहा हूँ. तो ये जो इनिशियलाइजेशन है ये कब कॉल हो रहा है? ये कब कॉल हो रहा है? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो. जब आप ऑब्जेक्ट p1 क्रिएट कर रहे हो तब ये मेथड कॉल हो रहा है. जबकि हमारे नॉर्मल मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल करते हो. लेट मी रिमूव दिस कमेंट्स. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप फंक्शन को कॉल करते हो और फिर उसमें पैरामीटर्स पास करते हो. जबकि यहाँ पे आप क्लास नेम में ही पैरामीटर्स पास कर रहे हो और वो पैरामीटर्स अब जो है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो गए. तो अब मैं ये p1 डॉट नेम प्रिंट करवा रहा हूँ और p1 डॉट एज प्रिंट करवा रहा हूँ. तो ये नेम और एज जो है वो p1 के साथ एसोसिएट हो गए. अभी नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ person2 equals person, I'll say Swati. Okay, I'll say Swati and I'll give the age as 19. Okay,
Now if I again print this, okay, I'll copy this and print it over here and I'll change it to P1 to P2 and P1 to P2. Okay. तो ये क्या प्रिंट करके देगा? Swati and 19. Okay. So Swati and 19. These two values are printed. So ये अगर आप डिफरेंस देखोगे तो स्वाति और 19 जो है वो %2 के साथ असाइंड हो गया P2 के साथ और वो उसके नेम और एज में आ गया है, राइट। अगर यही चीज मैं कॉपी करता हूँ और सेम यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ तो ये P1 के साथ जो नाम एसोसिएट होगा दैट इज रवि और P1 के साथ जो एज एसोसिएट है वो 16 वो प्रिंट होगी। सो दिस इज गोइंग टू प्रिंट स्वाति, okay, Swati. This is going to print 19. Okay. This is going to print Ravi, and this is going to print 60. Right. तो हम ऑब्जेक्ट के साथ वो वैल्यूज को एसोसिएट कर रहे हैं। तो दिस बिहेव्स एज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जावा में कंस्ट्रक्टर कहते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन इनिट मेथड कहते हैं, राइट। तो जब ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेट मी राइट इट डाउन। ओके, this method is invoked, okay, is invoked when an object is created। okay, हमें अलग से कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे। हम जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल हो जाएगा और जो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो पैरामीटर्स वैल्यूज इसमें असाइन हो जाएगी। and that is what we are printing over here। okay, so let's run this। okay, and you can see those values are printing। ये पहले वाले का है, okay, this one। और ये जो बाकी के हैं वो ये चार। okay, so this is all about class। okay, how to create a class, how to create an object of a class। okay, how to create a static method, how to create a non-static method, और नॉन स्टैटिक मेथड को आप एक्सेस कैसे करते हो, कैसे कॉल करते हो, और स्टैटिक मेथड को आप कैसे कॉल करते हो। okay? So these two programs is all about